Yoshitaka Shimugawa was the name of my boss in Japan, and he used to always communicate. He used to always say that India does not do any planning. We are all into all about execution. So हम लोग कोई planning, no planning. That is what he used to say. You all execution. Indian always execution. That's fine. But anyway, as I said, मुझे गुजराती ओછી આવે છે, મને गुजराती ઓછી આવે છે. So I hope English is okay and Hindi is okay. I know you're all masters students. So I'll use a few examples and I'll try and keep it as informal as possible. And but I hope we all learn from each other. And instead of a one-way session, I would again communication का golden rule यही है कि it is always it is an activity between two people. And मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे फीडबैक देंगे. I am my number is mentioned here. I am open to communication and more than willing to help and support in any kind of future response as well. Okay, so we'll start the session now, and we will start with the basics. Okay, so we're starting with what is communication skills and how do we take it forward. Okay, आपको कैसे ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा अपने एक्सपीरियंसेस में से. And that will help you relate to what I'm trying to say. Okay. Now ये सब चीज हमारा करने का मकसद ये होता है कि we are required to get the things done. The best is those, as I said, I was an introvert myself and I was not able to speak fluently, but leaders and communications में the people who's outspoken and the person who's able to communicate very well are generally the leaders. Are generally leaders वही होते हैं जो अपने point they are able to put it across to the people and getting their work done. कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये example XYZ मुझे काम करवाना है. I need it done. Those who are able to communicate it forward are able to get the work done, and those are the only people who are selected and they are rewarded based on this feature only. So everything starts from communicating what you have to say, and इसके बहुत सारे mediums हैं. We'll come to that. No issues. Okay. We'll start with the basics. It is a very generic very session but we'll start with the basics, and it is a broad perspective of what we are looking at. We'll start with the meaning of communication, how it is technically defined in terms of textbook language, what is technically defined. Yeah, and then the elements. There are few elements that are crucial to any kind of two-way communication, and the types. There are few categories and types जिसमें हमें कुछ ध्यान रखना है. हमें कहाँ पे क्या ध्यान रखना है, क्या चीजों का एहसास होना चाहिए. We'll talk about that in detail. That's not an issue, but this is what in general we are going to talk about. Okay. Now, meaning of communication. I'll start with the textbook language. In textbook language, communication comes from the Latin word communis, which is to share. Now, I can also say that even that कोई भी senior या कोई भी बुजुर्ग एक infant को, जिसको कोई भाषा नहीं आती, उसको भी अपना प्यार का माध्यम दिखा सकता है, even with a touch on his forehead, touch on his hand, with a hold, everything. So this can happen with multiple formats. It is a very generic term, very multiple formats it can happen. You can share products, you can share services, you can share, but when it comes to thoughts, emotions, ideas और messages, आपको दो लोगों में कम्युनिकेट करना के लिए ये इस सब्जेक्ट का मास्टरी करना बहुत जरूरी है. Right? Even animals and pets, even they communicate, right? But they do not use any kind of words or linguistics to say. They will push, but they still are able to express कि उन्हें भूख लग रही है या उन्हें कुछ, they keep on jumping for playing, or they keep on, if they're hungry, they give you the kind of cues, right? So, but this is something that we have evolved. हम फूड चेन में सबसे ऊपर हैं. हमारा मकसद ये है कि हम as a leader, we are able to express our thoughts and get our work done with coordination and with sync with each other. That is the reason why we are on the top. Okay. तो किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस, आइडियाज और मैसेजेस के लिए हमें कम्युनिकेशन करना जरूरी है. कम्युनिकेशन करने का मतलब है शेयर करना, और हमें आइडिया शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन से हम यूज करेंगे. नाउ ऑफिशियली the technical definition is that communication is the process to share thoughts and ideas from one person to another or a group of people. It is not necessary कि मैं
एक ही जने को पॉइंट कम्युनिकेट करूं या मैं हवा में बातें करूं, अपने आप से बातें करूं, वो कम्युनिकेशन करना नहीं हुआ। तो पहला रूल ये हुआ, द फर्स्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट फॉर कम्युनिकेशन यू नीड अ मिनिमम ऑफ 2 or more people. It is communication of sharing thoughts and ideas from one person to another. It has to be to a specific, एक sender है और definitely एक receiver भी है. A receiver can be multiple number of people also. When you're addressing a group, it can be to a number of people, right? मोदी साहब अगर एक लेक्चर, एक कोई मन की बात में सेशन देते हैं, उनको पता भी नहीं कि कौन रिसीवर होता है, पर देयर आर अनलिमिटेड रिसीवर्स. तो बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. वी विल कम टू दैट कि कैसा इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है. बट इट इज द फर्स्ट रूल इज दैट इट इज बिटवीन टू पीपल ओनली. ओके. नाउ कम्युनिकेशन स्किल, इस चीज को करने के लिए what we are learning right now is communication skills, and that is defined as the ability to convert your views or your views, information or message to another person in an effective manner. आपके आपके पास you have a thought or an idea which you want to share, right? इसका एक प्रोसेस है, we'll come to that. इसका एक प्रोसेस है जो कि हम efficiently कर पाएंगे, तो we'll be able to communicate it forward and we'll be able to do it in a very efficient manner, राइट. इसके बहुत सारे मीडियम्स हैं, कौन सा चैनल कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके आई कम टू दैट. कब कौन सी चीज को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए. बट हर एक चीज के रूल्स, नियम, कायदे, कानून है विच विल कम ओनली विद एक्सपीरियंस एंड ओनली इफ यू आर अवेयर. दैट इज व्हेन यू बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन टुडे which will come to you for which will come to you in a future stage. It will come to you as default. आपके मन में by default होगा because you've already experienced it multiple number of times. Okay. So now, common forms of communication. The common form of communication are using verbal and non-verbal. I mean, these are the main two forms of communication that we have. That we as a person are using. Now, verbal form of communication means using words, and जो words अपने आप में बहुत सारी चीजें दर्शाते हैं, and non-verbal form of communication भी इतना ही important होता है, जैसे कि use of hands, use of gestures, use of facial expressions, use of eyes. It is touch, sometimes touch also, right? So the एक support जरूरी नहीं है कोई किसी को कुछ बोले, but even holding of a hand is sometimes very supportive and very encouraging, right? इसके अलावा दो और प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल्स अवेलेबल है. वन इज पिक्टोरल, विच मीन्स थ्रू इमोटिकॉन्स, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू वर्ड्स, थ्रू एक्सप्रेशन और थ्रू आइकॉन्स, जिसमें कि हम बहुत सारे, बहुत सिंपल, हम रोड पे जाते हैं, रोड से पे जाने से लेके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट तक सब जगह एक इमोटिकॉन या कम्युनिकेशन या एक आइकॉन यूज किया जाता है, या कोई एक इलस्ट्रेशन यूज किया जाता है, जिसमें हमें ये एक एग्जाम्पल भी है कि वन a picture is better than 1,000 words, right? And video is even better. So एक कम्युनिकेशन के लिए सही माध्यम में क्या क्या कम्युनिकेट किया जाना है वो भी हम उस पर आएंगे. But another form of communication is, the first is verbal, which is through words. Second is non-verbal, which is through body gesture, जो हम साथ में बोलते हैं, right? Third is pictorial, and fourth is written. Written is the most common form of communication that we are using right now. आजकल तो वैसे भी बहुत सारा देयर आर लॉट ऑफ न्यू चैनल्स अवेलेबल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब चीज में आप कम्युनिकेशन के माध्यम अवेलेबल है, जहां पर आप अपना पॉइंट यू आर कम्युनिकेटिंग टू द एंटायर वर्ल्ड. एंड उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है. we'll talk about that in some time. बट तो ये सब चीजें हम इसके बारे में आज बात करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट, now that we have learned what is communication skill, it is all about playing with these four things, which is verbal, non-verbal, pictorial, and written. We will come to why is communication important. We also come to know about that कि दो लोगों में communication करना जरूरी है, और communication किया लीडरशिप का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लीडरशिप में सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन करना. अगर जो लीडर्स बोल पाते हैं उनको उसी चीज की के लिए उनको सराहा जाता है, उनको आगे प्रोत्साहन मिलता है, और वो आगे उनको और जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि अपना काम को कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक्सपेक्टेशन भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, और एक्सपेक्टेशन से काम डिलीवर करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज देयर इज एक इसका एक डिफाइंड प्रोसेस है कि हम कैसे इसको यूज करके हम अपने आप को, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से ही है जिनमें की जो कि
अपनी टीम से, अपने कॉलेज से, अपने प्रोफेसर से बात करने में हिचकिचाते होंगे, कतराते होंगे। आई डोंट हैव एनी डाउट कि मिस्टर अर्पित या फिर और कोई प्रोफेसर के साथ आपको डाउट कर पाते होंगे, बट टू few people it might not be that easy, right? To some it comes for granted, and for to some it is a challenge कि मैं क्या कम्युनिकेट करूँ, या बोलते समय जबान बंद हो जाती है, या फिर कुछ वर्ड्स नहीं मिलते, आप मुंह में बात खो जाते हो। कम्युनिकेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस, एक प्रोसेस हम डिफाइन करेंगे कि क्या हमें करना है और किस चीज को हम करने, किस प्रकार से करने में हम उसको कैसे ज्यादा एफिशिएंटली अपना पॉइंट कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, नाउ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वी विल टॉक अबाउट। देन देयर आर अ फ्यू बैरियर्स, जो आई थिंक मिस्टर अर्पित ने भी आपके लिए साथ सेशन लिया था, सो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म नाउ। एंड अगर हमें पता है कि हमारा बैरियर क्या है, तो हम उसको बैरियर को ओवरकम करने के लिए क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट। ओके, एंड देन लास्ट में वी विल हैव अ Q&A सेशन, जहां पर आप मेरे को यू कैन योर 2 minutes इंटरेक्शन होगा टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, तो नो इशू। देन ओके, नाउ जैसा हमने समझा, कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस। ये चीजें हमारे मन में होती हैं जो कि हमें सामने वाले तक पहुंचानी है। उसको करने के लिए आपको ये टूल को हासिल करना जरूरी है। और उसको करने का तरीका क्या है? वी डू दैट इन अ वेरी सिंपल वे। वी डू दैट विद स्पीच, विद सिग्नल्स, with written and with behavior। जैसा मैंने बताया था आपको, वर्बल, नॉन वर्बल, पिक्टोरल एंड रिटन, वो यही चीजें हैं कि स्पीच, सिग्नल्स, रिटन और वर्बल एंड बिहेवियर, ये चार चीजों में हम इसको दर्शाते हैं। दीज आर द फोर मीडियम्स थ्रू व्हिच वी आर एबल टू कम्युनिकेट एंड व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस, या जो हम चाहते हैं वो हम इस वी आर एबल टू डू दैट थ्रू दीज फोर थिंग्स। Okay, it may be anything, it may be an instruction, it may be an idea, it may be thoughts, it may be feelings, it can be multiple number of things, but for that we need to do this। Now इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक बहुत सिंपल तरीका है जिसमें कि दिस इज कॉल्ड 7 steps ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ इस 7 steps ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप इज द सेंडर हिमसेल्फ, जिसके पास एक आइडिया है। Okay, so step one is the sender himself. Step two is that he wants to send an idea or a thought or a message or a communication or an idea, anything, you know। So the number one is source, number two is the message कि आपको क्या मैसेज कम्युनिकेट करना है, number three कि आप उसको encode करना है। Now what does encoding mean? Encoding means it is to be able to communicate in the language। आप already you know you are पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट कोडिंग टेक्निक्स। बट एक चैनल को एक तरीके को कम्युनिकेट करने के लिए समटाइम्स मिक्स एंड मैच इज ओके, बट अदरवाइज यू हैव टू डिसाइड व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट लैंग्वेज यू विल चूज टू कम्युनिकेट द सेम, राइट? यू कैन बी उसको next is how do you like to communicate? There are a lot of instances where interacting with Southeast Asia is very different। For example, अगर मैं सिंगापुर में किसी से बात कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे ध्यान रखना होगा कि वो हमसे 1.5 घंटा 2 घंटा हमसे आगे है, राइट? सो देयर डे स्टार्ट व्हेन, जब हमारे यहाँ सुबह 7 बजे होते हैं, तो वहां पर सुबह के 9 बजे बज चुके होते हैं, देयर ऑफिस इज ऑलरेडी स्टार्टिंग, सो दे हैव टू वर्क इट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से दुबई में बात करना चाहता हूँ, दे आर ऑलरेडी 2 hours behind us, right? So we have to ensure that if it is 9 a.m. here, we have to wait for 2 hours for them to get ready and for them to have a 9 a.m. time cycle so that हम उसको speak कर सकें। So communication channel is again a medium जिसमें कि हम उनसे बात करने के लिए कौन सा मीडियम यूज करेंगे, वो जरूरी है कि वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देर आर मल्टीपल चैनल्स दैट आर पॉसिबल, जैसे कि ओरल है, रिटन है, व्हाट्सएप है, मैसेजिंग है, ईमेल है, देन वर्बल ओवर फोन ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक। So there are multiple channels that to think about to communicate the message across. So what channel to choose is also equally important. Next is वहां पर जब आपका मैसेज पहुंच गया, आपने सिर्फ मैसेज पे लिखा कि मीटिंग एट 8, right? Though they have to be able to decode it completely, they have to be able to understand it also. Meeting is for whom? Meeting is with for what? Meeting is for what are the subjects, what are the requirements, is there any criteria required to do, what are the channel? For example, अभी हमारे communication channel में webex की जगह, webex में communication channel में दिक्कत आई, so we are using Google Meet now,
So there are multiple hindrances that happen while decoding or coding, or even in the, it can come in any part of this, any stage of the process. So there are, so it has to be short, crisp. I'll tell you those golden rules also. We'll come to that कि कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करें जो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये मल्टीपल स्टेजेस हैं। साथ में डिकोडिंग मतलब जब आपको किसी को रिसीवर को मैसेज मिल गया तब उसको वो चीज इंटरप्रेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू एक्चुअली वांटेड टू से इज एक्चुअली डिसाइफर्ड आल्सो, एंड रिसीवर को मैसेज मिल गया, उसने काम खत्म कर दिया। नाउ इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट parameter of this is the seventh step, which is the feedback, right? For example, आप अगर I am trying to communicate in English and Hindi, right? और आप मुझे वापस जवाब दे रहे हैं गुजराती में और मुझे पता नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल साउथ में तमिल में, आई वर्क इन तमिलनाडु ऑल्सो, और वहां पर नॉन तमिलियंस आर कंसिडर्ड एज फॉरेनर्स, राइट? आपको तमिल नहीं आती तो आप बाहर के मतलब आप एलियन समझे जाओगे, आप फॉरेनर समझे जाओगे, तो इवन दैट इज कंसिडर्ड। हाउएवर, सो in order to decipher that, feedback is very important, that acknowledged, I am confirming, okay मुझे ऐसा करना है, हो जाएगा। और तो ये कंफर्मेशन वापस फीडबैक का साइकिल हमें कंप्लीट करना जरूरी है। दिस साइकिल इंश्योर्स दैट whatever you wanted to communicate has been delivered and the respective task will be achieved। जो हम चाहते थे वो कम्युनिकेट हो जाएगा। मैं कॉर्पोरेट लेवल के एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं सिंपल सिंपल भाषा में एग्जांपल दूंगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल घर में कोई कहता है कि मेरा गेट कि मुझे गाड़ी में फ्यूल भराना है, तो फ्यूल भरा के ले आइए, या फिर ग्रोसरीज लेके आनी है, एवरीबडी डज दैट इन द हाउस होल्ड। तो ग्रोसरीज लेके आइए, मिल्क वेजिटेबल्स कुछ भी खत्म हो गया है, तो आप लेके आने की बात करते हैं। जो रिसीवर है या तो हाउसमेड है या आपकी फैमिली में कोई कॉलीग है या कोई पेरेंट है, somebody or the other receives the message, अच्छा ठीक है मैं जाते समय आते समय लेते हुए आऊंगा। So once the communication channel is complete, once you receive an acknowledgement, that is when the communication is complete, and उसके बाद task will take its place, but for that the communication has to follow this simple process। जो आपको बोलना है या तो आप orally verbally मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ओवर वॉइस मैसेज, आज व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, और फेसबुक पे मैसेंजर पे चैट मैसेज, मल्टीपल चैनल्स, सो वी टॉक अबाउट दैट। बट ये बेसिक एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपको जानना जरूरी था। So this is called the seventh stage of seven steps of communication, जिसमें कि हम सोर्स से लेकर रिसीवर तक हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, और वो साइकिल कंप्लीट होता है जब आपको फीडबैक वापस रिसीव हो जाता है। ओके, so that is the only time which is when it is complete। Now, same thing we learn with an example, right? I have a, I have to, or for example, किसी को भी एक मैसेज कम्युनिकेट करना है, उसके पास एक आइडिया है जो कि वो जो कि वो मैसेज में डिकोड करने की कोशिश करता है कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, ओरली, वर्बली, रिटन के थ्रू, क्या बोलना है, कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, मुझे हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, गुजराती में बोलना है, तो उस मैसेज चैनल के थ्रू मुझे कौन से चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना है, which is either I want to do it through telephonically, I want to do it through message, I want to do it through through email or to WhatsApp group, Facebook, Twitter, whatever. There are multiple channels of communication। आपका अल्टीमेटली एक मैसेज है जो कि आपको डिलीवर करना है, आप मैसेज कम्युनिकेट आगे भेज देते हैं, और उसके बाद एक रिसीवर है। रिसीवर उसको समझने की कोशिश करता है जो आप बोलते हैं, उस वर्ड को समझने के, उसको इंटरप्रेट करता है कि आपका कल एक पार्टी है, कि कल शाम को पार्टी है, संडे को, संडे वीकेंड पे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है या इवेंट है, उस इवेंट पे मुझे आना है, ओके आई विल कम। वो फीडबैक देता है कि अच्छा मुझे फैमिली के साथ में आना है कि फैमिली के साथ में नहीं आना, तो वो इट्स अ टू वे प्रोसेस, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो कि चलता रहता है। तो व्हाट वी लर्न हियर इज कि इट इज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस वेयर two parties are involved, at least two parties are involved, and it is complete only when you receive a feedback। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट उसका फीडबैक भी आता है। सो फीडबैक इज अनदर सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच वी यूज as for communication process to be complete। So feedback is the next most important thing। Okay, now okay, if you have any concerns you can use the chat box or save your messages। You have my number, I will talk about that later, so don't worry about it if you have any doubt। I'm sure I'm trying to be as simple as possible, and अभी तक तो examples वगैरह कुछ use नहीं कर पाया हूँ, but whatever you have done please use the chat box। Okay, so don't worry। Now
Types of communication, there are जैसा मैंने आपको पहले बताया था, there are two types of, in this is a broad definition, और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज की मैं हम बात कर रहे हैं. वेलकम टू सिंपल एग्जांपल्स एंड रोल प्ले आल्सो अर्लियर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर. बट अभी हम जो टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग के लिए, there are two forms of communication, two types of communication, which are primarily verbal communication and normal verbal communication, normal non-verbal communication. ओके, हमारे कम्युनिकेशन करने के बहुत सिंपल माध्यम है अवेलेबल, कि हम वर्बल से करें, मैसेज से करें, और दोनों के अपने ही एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं. जो बोल नहीं पाता है उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो बोलने में मतलब गड़खड़ाता है या अटकता है, तो वो नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कन्वर्ट कर सकता है. और उसके भी लिमिटेशन है कि इंस्टेंट रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता. Okay, so there are a lot of things that both have an advantage of and disadvantage of, that we'll talk about it. Okay, so it depends on the message. जो मैसेज आपको भेजना है उस मैसेज की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर ये चीजें डिसाइड होती है कि हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से कौन सा चूज करेंगे. ओके, नाउ verbal communication it refers to the form of communication where it is transferred verbally या फिर टेक्स्ट के थ्रू. जो जो आप वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स इज द की वर्ड है. वर्बल कम्युनिकेशन में अगर वर्ड्स हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट माना जाएगा. वर्ड्स कैन बी ओरल और रिटन, ये दोनों जैसे नीचे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि वर्ड्स कैन बी ओरल और रिटन, इट कैन बी एनी फॉर्म बट इट इज कम्युनिकेटेड वर्बली. ओके, नाउ इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. नाउ कम्युनिकेशन इज डन विद वर्ड ऑफ माउथ और पीस ऑफ राइटिंग. ओके, सो ओरल रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मेट अवेलेबल है. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है विच इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. मतलब जितना सिंपल कम्युनिकेशन में, जितना सिंपल साधारण शब्दों में आपको बोले उतना ज्यादा अच्छा रहता है. आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. आई हैड अ सीनियर, मैं नया नया एम्प्लॉय में ज्वाइन किया था हमने. एंड माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज इन वोडाफोन, वेयर एवरी केस एंड एवरी केस वाज इक्वली कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी और इक्वली चैलेंजिंग फॉर मी. और हर केस में मुझे इंडिविजुअल डिफरेंट दिखता था कि अरे ये ऐसा होगा. मेरे एक सीनियर थे, उनका क्या नाम है, हम उनको दादा बोलते थे बिकॉज ही वाज फ्रॉम बंगाल ऑफ कोर्स, हम उनको दादा बोलते थे. तो आई यूज्ड टू कम टू हिम एंड आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसीजर. दादा वो उसका ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा किया, फिर वो यहाँ गया, फिर ये कंसर्न आया, फिर ये उठाया, फिर ये ऐसा किया. तो दादा यूज्ड टू लिसन टू इट वेरी पेशेंटली, and he used to nod his head. So I hope you can imagine, there's a very chubby guy who's very smiling face, and he used to listen. He used to come. He used to accept all queries with open arms, and he used to come to me and ask, कि okay, हाँ हाँ बताओ बताओ, with nodding heads, okay, yeah हुआ, ये हुआ, okay, ये हुआ. He kept accepting. But at the end of the conversation, after 5 minutes, he used to say, end में बता करना क्या है. Okay, so what I mean is, you should keep the message to being relevant, right? Sometimes it happens that we are always, we go off track and use irrelevant information which is actually not required during the conversation. Okay, आपको exactly to be precise, आपको जो चीज बोलनी है उसको keep it short and simple. Keep it as simple. जो करना चाहते हो वो साधारण शब्दों में समझाइए. To be very honest, for example, अभी जैसे अर्पित ने बताया कि okay, we are having a concern with WebEx, where we will let's do the same conversation because we made a calculated decision that okay, it is less than 100 people, we can do it on a Google Meet. So let's try and do that here. So it was a calculated decision. It was communicated clearly, instantly. That okay, let's switch to Google Meet, and it was done instantly, right? So keep it short. This is the acronym for it. Keep it short and simple. Okay. Communication का, written communication का एक और abbreviation है which I'll tell you. But oral communication का, this is the key learning that we have. That जितना संक्षिप्त में, जितना छोटे से छोटे में आप कम्युनिकेट करना चाहें. कहानियां बनाना सबको आता है, कहानियां बनाना, कहानियां दर्शाना. Everybody knows and everybody is an expert in it. Storytelling. But if for formal communication and for formal, getting things done, you have to keep it very formal and you have to keep it as crisp as possible. Crisp मतलब संक्षिप्त में डेटा के साथ जितना जानकारी देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. ओके,
इसके दो प्रकार अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कब कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कि आप वर्ड्स यूज करते हैं। वर्ड्स आप कब यूज करते हैं, राइट? वर्ड्स इज स्पोकन वर्ड, स्पोकन वर्ड मतलब वर्बली आप कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, वो कब यूज करते हैं, जब आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, जब आपका कॉन्वर्सेशन टू वे कॉन्वर्सेशन होगा, जब आपका स्पीच या किसी को डिलीवर करने हैं टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक आई एम डूइंग इट टू यू राइट नाउ, आई एम ओपन चैट बॉक्सेस, मैंने आपको बीच में भी एक्सप्रेशन बोला भी था कि आप चैट बॉक्स इस्तेमाल करके मुझे वहां वापस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट just to keep it streamlined, we are still keeping it one way only at the moment. Okay, so speech, then there is telephonic conversation, then there is conversation between on the video or radio, television or voice over internet, that's VoIP. Okay, ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम में जो हम ओरल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। नाउ व्हेन इज इट दैट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज गुड? ऐसी कम्युनिकेशन कब अच्छा होता है, राइट? अच्छा तब होता है जब आपको इंस्टेंट आपको रिएक्शन चाहिए, ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तब हम ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं विच इज ओरल। ओके, which means that your when your values and your point of view is important to me and I want a response, जब आपको रिस्पॉन्स चाहिए तब आप इस कम्युनिकेशन का माध्यम यूज करेंगे। इट मे बी ओवर फोन, इट मे बी ओवर वन टू वन कम्युनिकेशन, इट मे बी ओवर मीटिंग, ओवर कॉन्फ्रेंस, ओवर कॉन्फ्रेंस कॉल, कैसे भी कर सकते आप साथ में मिलकर बात कर सकते हैं, पर आपको जब सामने वाले का रिस्पॉन्स चाहिए तब आप ओरल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। ओके, पर अगर कोई इसमें एडवांटेजेस क्या होता है, इसमें एडवांटेजेस होते हैं दैट इट इंस्टेंटली आपको यू गेट अ क्विक इंस्टेंट रिस्पॉन्स में आपको फीडबैक मिल जाता है। इट मीन्स दैट इफ यू आर wanting to do something and there's this interaction, two way communication है, बार बार टू एंड फ्रो डेटा आपका आपस में जा रहा है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, अगर हम दोनों मिलकर कुछ एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों चीजों पे टू वे कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, तो वो कि चलो ऐसे करते हैं, तो नहीं चलो ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ओके, मेरे पास चॉइस कम होती है कि हम लोग एज अ हस्बैंड, अगर जिनकी फैमिली में जो बड़े भाइयों को देख चुके हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस होगा कि चॉइस कम होती है, बट टू वे कम्युनिकेशन में हमें साथ मिलकर कंप्लाई करना पड़ता है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव फीडबैक एंड टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो आप टू वे कॉन्वर्सेशन करते हैं, इंस्टेंटली आपको फीडबैक मिलता है और आप इंस्टेंटली अपने आप को मॉडिफाई करके रीराउट कर सकते हैं जो डिजायर्ड आउटकम है उसके लिए। ओके, इसका एडवांटेज क्या है कि इट गिव्स यू अ क्विक फीडबैक इन अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज वन कैन गेस whether he she should trust for the what is being said or not। इसका ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है विद आइदर बाय वर्ड्स और बाय विजुअल जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको मैंने कहा था। आपको ध्यान हो तो मैंने चार चीजें बताई थी, वर्बल, नॉन वर्बल, पिक्टोरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन की हम बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन में वो आएगा जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत महत्व है। अगर मैं बात करते समय अपना अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट रखूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा एहसास किसी वर्ड्स पे एम्फसाइज करने का तरीका, इट इज यू कैन गिव इम्पोर्टेंस टू वर्ड्स एंड मीनिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड विद दैट मैं अगर सिर्फ कहूँ कि हाँ हो जाएगा, ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, दोनों में से कौन से में आपको ज्यादा भरोसा होगा? तो दोनों का मतलब हाँ ही है, दोनों का मतलब काम हो जाएगा ही है, बट एक का मतलब है कि हाँ मैं कर दूंगा, दूसरे का मतलब है कि मुझे खुशी से करूंगा, राइट? So even words, it is also the what you are expressing that is very important. So the expression और body language, वैसे ही body language में it is a very simple tool that when you are talking and अगर सामने वाले के हाथ अगर बंधे हुए हैं, they are अगर जैसे हाथ को क्या जैसे कहते हैं ना कि दे क्रॉस देयर हैंड्स, अगर हाथ को अपने बाजू में बांध के खड़े होते हैं तो यू क्लोज योर सेल्फ फॉर कम्युनिकेशन, आप किसी भी चीज सुनने के लिए राजी नहीं है। ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ में आता है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, लॉट ऑफ विजुअल क्यूज जिससे भी फर्क पड़ता है, तो जो आपको देने के लिए अच्छा होता है और आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स उससे मिलता है।
तो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज यही है कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, बी इट वर्बल, बी इट फेस टू फेस और बी इट थ्रू वर्चुअल, नॉन वर्बल मतलब कि थ्रू एक्सप्रेशन, थ्रू नॉडिंग, बहुत सारी चीजों से आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये कहाँ काम आएगा मैं आपको भी बताऊंगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको फेस टू फेस डिस्कशन में आप बहुत जल्दी कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट हो जाता है मतलब यू एक काइंड ऑफ टॉपिक डिविएट होना बहुत आसान है, बिकॉज इट इज डिराइव्ड ऑन द पर्सन रिस्पॉन्स। जो रेसिपिएंट है उसके रिस्पॉन्स से मेरा कम्युनिकेशन का चैनल या आगे फर्दर कम्युनिकेट करना बहुत निर्भर करता है। एंड इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि आप सामने वाले को इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने की बजाय जब आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स ले लेते हो तो आप उसको गहराई से सीखने का मौका नहीं देते, गहराई से सीखने का मौका नहीं दे पाते। ओके, इट मीन्स कि आप समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली कि वो कहना क्या चाहता था या हिडन मीनिंग क्या थे। बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है, इनडायरेक्टली आपको कुछ बोला जाता है या फिर उसका और डीप स्टडी आप नहीं कर पाते, इंस्टेंट रिस्पॉन्स में आपका मिस हो जाता है। डजंट मैटर नाउ। तो दिस इज द ओरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट। ओरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट यही है कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है और आपको इंस्टेंटली टू वे कम्युनिकेशन के साथ आप उसका और आगे फर्दर एक्शन अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, आप ठहर के आप गहरे सोच विचार में उसको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ओके, तो जब आपको तो इसका लर्निंग क्या हुआ? इसका लर्निंग ये हुआ कि व्हेन यू नीड अ डीपर एनालिसिस, जब आपको एनालिसिस करके किसी का गहराई से आपको जवाब चाहिए तो आप ओरल कम्युनिकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? जब आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए तब आप ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, जब आपको चाहिए कि सामने वाले का रिस्पॉन्स जरूरी है तो आप ओरल फॉर्म कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज वेयर वर्ड्स, सिंबल्स, ये सब चीज यूज की जाती हैं और ये आपको वापस कम्युनिकेट करने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम थ्रू, जिसमें वर्ड्स इस्तेमाल वर्बली इस्तेमाल नहीं होगा। इट इज आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू लेटर और थ्रू रिपोर्ट और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू मैसेजिंग ऑल्सो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहले के जमाने में, अभी तो नहीं, आजकल के जमाने में नहीं, बट पहले के जमाने में हर चीज की चिट्ठी मांगी जाती थी। आजकल चिट्ठी नहीं है, आजकल ईमेल का सपोर्ट मांगा जाता है, बट इट्स फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था। तो इसका गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल ये कहता है कि रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड देन यू नीड इट डॉक्यूमेंटेड, ये फ्यूचर में आपने क्या बोला था, राइट? इट इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड इन द कॉर्पोरेट राइट नाउ। इन कॉर्पोरेट टुडे इवन व्हाट्सएप इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कि आपका फ्यूचर में आपने एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट किया था, क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या डिलीवर है, इंक्लूडिंग टाइम लाइन, वो सब चीज कि आपको आपको एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है बाय मंडे 9 AM, विच इज प्रिसाइज एंड कॉन्क्रीट डेटा के साथ आपने बताया कि आपको प्रोजेक्ट पूरा डिलीवर करना है बाय मंडे, तो दैट इज हाउ इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। बट कम्युनिकेशन पूरा प्रिसाइज था, कंसाइज था, इट इज एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड, तो आपको उसी चीज का जवाब दे पाओगे। बट ये चीज वर्बली करना ये इतना सीरियसनेस नहीं आती। तो इफ यू वांट टू टेक योर वर्ड एज आपकी बात में वजन ऐड करना है तो आप उसको रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में माइग्रेट कीजिए। दैट इज हाउ इट इज, इट विल ऐड वैल्यू टू इट एंड you will have a future documentation of it कि future में कैसे इस्तेमाल करना है। Now, it is the most, as I said, it is the most common form of communication used in business today. Okay? इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज। इसका एडवांटेज हम देखते हैं कि मैसेज कैन बी, आपको टाइप करने में जब आप बात करते हैं तो बात करते करते इट इज वेरी इजी टू हैव द आइडिया, बट व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू ड्राफ्ट द मैसेज। ईमेल बनाने में, चिट्ठियां टाइप करने में नॉट एवरीबडी इज इक्वली एडिक्वेट, तो वो टाइप करने में थोड़ा समय लगता है। वी डोंट वांट, वी डोंट नो व्हाट टू डू, so take your time approximately half an hour to 1 hour to draft anything, to communicate anything। आप उसमें टाइम लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको एडिट कर सकते हैं। वर्बली अगर कुछ मुंह से निकल गया, ये जबान से निकल गया, तो वो वापस नहीं बोला जा सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। However, you can always modify to mean it the best what you really need. Okay. Um, now, written form of communication provides a record and backup। आपके फ्यूचर में आपके रेफरेंस के लिए आपके पास रखेगा।
रिटर्न मैसेज एनेबल करता है कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या बोला था, डिटेल में क्या क्या चीज बोली थी, किस समय किसको क्या करना है, सब चीज रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आसान रहता है। आप डेलीगेट कर सकते हो अपनी टीम को कि टीम ए में एक्स वाई जेड, एक्स पर्सन ये करेगा, वाई पर्सन ये करेगा, जेड पर्सन ये करेगा, स्पेसिफिक टास्क और इंस्ट्रक्शन आप समय के अनुसार अपना टाइमली इसको लिख सकते हैं, इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ गलती होने की संभावना हो, तो जो कि आपके विजन से या आपके आपके प्लानिंग एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि आप एज्यूम नहीं कर पाए, उसमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ठीक है। इट टेक्स मोर टाइम, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट एंड टू एक्सप्रेस व्हाट यू नीड टू डू। ओके। नाउ, तो ओरल अभी तक हमने दो पार्ट किए, वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नाउ वी टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज आई सेड, जिसमें कि एक भी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, पर इसमें चार चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। कौन सी चार चीजें? कि आप, क्या नाम है, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आप कहाँ पर बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आपके साउंड, आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं। दीज फोर थिंग्स, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं अभी भी आपको उदाहरण बोल रहा हूँ, राइट। कि मैं आपको, मेरा आपको अभी उदाहरण है कि हाँ, मैं कर दूंगा। ठीक? इसी को एक्सप्रेस करने के मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं कि हाँ, हो जाएगा। दूसरा तरीका कि हाँ, कर तो करना तो है। तीसरा है कि हाँ, कर देंगे, ठीक है। तीनों में मतलब अलग अलग है, तीनों में मेरे एक्सप्रेशन से मेरी फीलिंग वैलिड है। एक में है कि मुझे जबरदस्ती करना है, दूसरा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, तीसरे में है कि हाँ ठीक है, करना है और टाइम पे आके कर देंगे। इट इज नॉट नॉट अ फॉर्मल, नॉट अ अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि द स्पीकर, जो 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 जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा सराउंडिंग्स किस चीज में है। आप जब भी किसी बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, राइट, इंटरव्यू देते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर लेवल में, अभी यू विल बी, आपके ऑफिस में कैंपस प्लेसमेंट भी होंगे, ये आप सबके लिए उदाहरण है। पीपल, अगर अगर आप एक बिजनेस संभाल रहे हैं, विच इज फॉर एग्जाम्पल पीवीआर सिनेमा, पीवीआर सिनेमा का एक फ्रेंचाइज आपके पास में, आपके नजदीकी पीवीआर सिनेमा, आपके आप ओनर हैं और आप उसका एक मैनेजर हायर करना चाहते हैं। what will you look for? There is one person who is, two people who are both are graduates, but one person is very well polished, tie लगा के आए हैं आपके सामने, and he is speaking in a very polite, very decent manner. He is wearing formal shoes, black color, and formal trouser के साथ आपके साथ झुक झुक के बात कर रहे हैं। Second is a person who has curly hair, थोड़ा बड़े हुए बाल है, दाढ़ी बड़ी हुई है, एंड चश्मा है, बट वो बार बार चश्मे को हाथ लगा रहे हैं। सेकंड, आपका टी शर्ट है, वो भी एक बाहर निकली हुई, आधी तरफ से बाहर निकली हुई। तो अपीयरेंस मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड दिस इज appearance makes a lot of difference, which is what is required for you to understand. And so small things like clothing, hairstyle, neatness, use of cosmetics. आप मानेंगे नहीं, मैं अभी ज्वेलरी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, पर मैं यहाँ पर आके मैंने सीखा है कि ज्वेलरी में मेरे स्टाफ का आईज पे आईलाइनर लगा के वो काजल लगाते हैं, और काजल में वो मोर पंख बनाते हैं आंख पे। एंड उनका इंस्पिरेशन क्या है, मैं अपने स्टाफ को यही बोलता हूँ कि अगर आप ग्रेसफुल दिखोगे, तो आपका कस्टमर भी आपको देख के दे विल वांट टू फील गुड एंड दे विल वांट टू फील प्रिटी एंड एडमायरेबल लाइक यू। So that is what is the requirement. So small things matter. आँख पे आईलाइनर लगाना, क्या नाम है, इसकी तरह मोर पंख की तरह हम आईलाइनर लगवाते हैं, साथ में हम काजल यूज करते हैं, एंड स्मॉल थिंग्स लाइक नीटनेस ऑफ हेयर स्टाइल, आपका जिस तरीके से आप फॉर्मली ड्रेस्ड होते हो, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, everything is not verbally, not directly but indirectly supporting what you want to say. Okay. Surroundings, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एयर होस्टेस है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन सी। आप अगर एयर होस्टेस में जाते हो तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आप, शी इज द बेस्ट ऑफ हर मैनर, शी इज वेरी courteous, शी इज वेरी वेरी हम्बल होस्ट। आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप ऊपर बेल दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आएंगी, आपकी हेल्प करेंगी। एंड आप किसी
एक एडमिरेबल जॉब है कि आपको लगता है कि शी इज वेरी नीट, शी हैज अ पर्सन विद नीट क्लोथिंग, विद नीट हेयर स्टाइल, खुद नीट रहती है और यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा करती हैं। साथ में उनका एम्बियंस जो है वो बहुत वेल लिट है। वो एयर होस्टेस के लिए नहीं एग्जाम्पल यूज कर सकते, बट अब जहाँ पर अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं उसका ईमेल का चैनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कि आप ईमेल पे, टेक्स्ट पे जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, तो यू आर डूइंग इट इन द राइट मोड, राइट मैनर, राइट डेकोरेशन, राइट फर्निशिंग। इट मीन्स कि आपका जो एम्बियंस है वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन का अलग अलग मतलब होता है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेस्चर्स, कोई झुक के बात करता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पॉस्चर्स, कोई आपकी तरफ देख के बात भी नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो इट इज these are small hints which will help you improve your communication better. So it is not something that comes by default, but it is something that should be known. And being from a customer service background, these are very important in the service industry. And if you require to get your job done, now sound and which is voice tones, volume and speech. जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ मुझे करना है, um, और मुझे वॉल्यूम, हाँ मैं कर दूंगा, तो it means anger. So volume is also equally important. Rate of speech, जितना जल्दी आप बोलते हैं उससे भी उतना ही फर्क पड़ता है। So these are non-verbal communication parts. Okay. Now what we learn about is barriers. कि हमारे इसमें बाधक या अवरोधक क्या होते हैं, किस चीज से है, क्या चीज है जो कि हमें सब करने से रोकेगा। Okay. Barriers of communication are, there are multiple types of barriers. एक है semantic barriers, physical barriers, organizational barriers, emotional barriers, personal barriers, technological barriers and cultural barriers. ये चीज क्या क्या है, अब इसके बारे में 2 मिनट और बात करेंगे। ओके, सेमांटिक बैरियर। सेमांटिक बैरियर इज लैंग्वेज और अ लिंग्विस्टिक बैरियर। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं आई वाज सिलेक्टेड, शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्पल। एप्पल मोबाइल फोन आप सब लोग यूज करते हैं, यू नो मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब एप्पल ने मुझे बैंगलोर, मुझे चेन्नई में अपॉर्चुनिटी दी काम करने की। नाउ व्हेन जब मैं वहां गया, so because the product is of such premium nature, I did not have a problem because everybody used to speak English. But जहाँ वहां पर आपको अगर तमिल नहीं आती है तो यू आर कंसिडर्ड एज अ फॉरेनर। तो वो एक बैरियर है। मैं बेसिक ऑपरेशन, इवन दो विदिन माय ऑफिस एनवायरनमेंट, आई वाज द बेस्ट पॉसिबल staff because it was a dream company that where I was able to work. It was they were able to give me adequate services and the service staff and everything was fine. However, when I on a personal level, when I used to go outside, जब बाहर का कुछ भी काम करना है तो वो आपको मामू बनाएंगे, आपको चोरी करेंगे या मामू बनाएंगे, अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करते, so they are not very good at that place. So linguistic barrier आता है, which is there, which you do not have a control over. Now bad expression words, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपकी भाषा में सरल है। जैसे यहाँ पर हम अगर गुजरात में हैं, अगर हरियाणा का हम देखा जाए, हरियाणा का देखा जाए तो वहाँ की भाषा बहुत लठमार भाषा होती है। रे के हो रे काऊ, वो वो इट इज कंसिडर्ड एज ए वेरी रूड। एंड जरूरी नहीं है आपके कल्चर में, हमारे कल्चर में जो चीज नाजुक मानी जाती है हो सकता है उन कल्चर में नाजुक ना हो। तो देर आर सर्टन बैरियर्स विच यू हैव टू ओवरकम, और जिसको देखना होगा। आप चाइनीज जापानीज कंपनी में यू हैव टू एड्रेस विथ सन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ साहब इस्तेमाल किया जाता है या फिर श्री इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल कंपनी में मेरे जापानीज एक बॉसेस थे, उनका उनमें सान लगता है, शिबुगावा सान, जोशी टाटा शिबुगावा सान एंड कोनिशी सान। तो सान मतलब सर। तो there are certain things that are required to be done, which use these things as an advantage for your benefit, and जहां पर सामने वाले का इरादा गलत ना हो उसको you have to take it forward. Now faulty translation, किसी का कहने का मतलब सॉरी, नेक्स्ट इज वॉइस या वर्ड्स। कुछ वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे वैल्यू, और वैल्यू का मतलब इस हाउ मच इज हिज वैल्यू, उसकी कीमत कितनी है। या तो प्रोडक्ट भी हो सकता है और वो पर्सन भी हो सकता है। अगर पर्सन है तो वो ही इज वर्थ, ही इज प्राइसलेस है, उसकी कीमत लेस है। तो मतलब ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय दैट आई हैव। तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इट्स नॉट एन इंग्लिश क्लास, बट किस चीज को, किस मेटाफोर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसको गलत मतलब नहीं इस्तेमाल करना, ये भी हमें जानना जरूरी है। ओके, नाउ फॉल्टी ट्रांसलेशन, कुछ हमने बोला कुछ था, उसका मतलब कुछ और निकला, राइट, उसको भी हमें ध्यान रखना है।
देन क्लैरिफाइड assumption, अनक्लैरिफाइड assumption, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर यहीं पर ही आता है, राइट? आप फॉर एग्जांपल यू आर ऑल मास्टर स्टूडेंट्स इन in and to you maybe a language comes by default. आपके पास कोई आपके लिए जो जार्गन है, आप एक स्पेसिफिक लेवल और एक स्पेसिफिक मेहनत करने के बाद एक लेवल तक पहुंचे हैं, और आपके पास आपकी वो अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली एक फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट या 12th पास स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक सी प्लस प्लस कर रहा है, उसके लिए इतना स्पेसिफिक नहीं आ पाएगा, या ही विल नॉट कम टू दैट लेवल वेयर जो कि वो आपको तुरंत समझ पाए। वैसे ही जैसे मैंने बताया टेक्निकल जार्गन किसी और को नहीं पता कि एनटीएफएस क्या होता है या फैट 16 क्या होता है, तो दीज वर्ड्स आर समथिंग विच आर विच आर which a technical person will know, but a non-technical person will not know. So you'll have to make it very easy for the person to understand who's sitting in front of you. सामने वाले के अनुसार आपको चीज बात करना बहुत जरूरी होगा, right? Body language and gestures. So you have to be this is something that you have to work on कि आप अपने आप कैसे body language में अपने आप को ढाल सकते हैं ताकि it help. Okay? Now communication barriers, ये अभी I am work for Reliance, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, वो भी मेरी कंपनी है, कि अब तो नॉइज का इतना प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि सब जगह जियो मौजूद है। वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड थैंक्स टू मुकेश सर, तो नो प्रॉब्लम, बट एनीवे, बट फिर भी पहले के जमाने में अगर आप बात करते हैं तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज डिस्टर्बेंस और इफ देयर इज नॉइज। सेकंड, एज आई सेड, इज पुअर टाइमिंग। कम्युनिकेशन इन यूएस, कम्युनिकेशन इन एक्सटर्नल कंट्रीज या हमारे से ज्यादा कंट्रीज जहाँ पर टाइम का डिले हो, टाइम का गैप हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन का में डिस्टेंस में बैरियर हो सकता है कि हम कभी भी कोई मीटिंग एक साथ प्लान कर ही नहीं सकते, बिकॉज जब हमारे दिन होता था वहाँ रात होती है, जब वहाँ दिन होता था हमारे रात होती है। सेकेंड, पुअर टाइमिंग का मतलब ये भी है कि देर आर एसोसिएट्स और देर आर टाइम्स व्हेन योर कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो। जब आपके पास टाइमिंग का दिक्कत हो, जब आपको समझ में ना आए आपको क्या किस समय क्या बोलना है, तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू डू द कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म, not in oral form, because you are not able to draft it. When you are able to do a written communication, you will be able to draft it properly, you will be able to take your time और अपना पूरा मैसेज एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। थर्ड इज डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, तो जैसे मैंने बताया जियो के लिए के बाद आपको एक बैरियर है नहीं, बट फिर भी डिस्टेंस इज स्टिल देयर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की कोई फिजिकली दूर है तो ओवर फोन इज द ओनली सोर्स ऑफ मीडियम पॉसिबल। वन टू वन फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं है। आई नो हम फेस टाइम और वीडियो चैट कर सकते हैं, दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव, बट टेक्निकली दिस इज देयर दैट की डिस्टेंस भी पहले हर्डल हुआ करता था। Next is inadequate or overload of information. Too much information is poor for us and too little information, जैसे मैंने आपको बताया, दादा मेरे को हमेशा बोलते थे कि एंड में बता मुझे करना क्या है। Too much of information is not something which is good, but you have to keep it short, you have to keep it precise, and you have to also ensure that बहुत कम इन्फॉर्मेशन भी आप ना दें, आप जितनी स्पष्ट जानकारी है उतनी दे ही, और बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा भी ना दें। There is another example. Okay. Now, organizational barriers, as I said, organizational rules or rituals, sorry, rules and regulations होते हैं जिसमें कि मैं डायरेक्टली अपने प्रोफेसर से बात नहीं कर सकता। क्या हम अपने हम मोदी साहब से डायरेक्टली बात कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन नॉट, राइट? बिकॉज उन तक पहुंचने के लिए बहुत चैनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा और डायरेक्टली किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू विंडोज, कुछ विंडो है मेरे पास छोटी सी विंडो, जैसे कि उन्होंने कुछ चैनल्स खोले हैं जिससे कि लोगों की आवाज़ उन तक जा सकती है, मगर वो सबके लिए हम डायरेक्टली जब मैं चाहूँ तब वो पॉसिबल नहीं है। कुछ हायरार्किकल रिलेशनशिप भी होते हैं। हम इंडियंस हैं और इंडियंस में दो ग्राउंड रूल डिफाइन किए गए हैं कि हम उम्र को हम इज्जत देते हैं और हम रैंक को हम इज्जत देते हैं। तो चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो उम्र में मेरा बॉस मुझसे उम्र में कम है, right? My business head is younger, is very young, but he's from a very reputed organization internationally. So I understand, but obviously I have to give him respect. So we give that kind of respect to people. Where because of that, because of rank, because of hierarchy, I am not able to speak to him in the way that I want, but in the way that is expected from the organization. Okay. Next is lack of staff meetings. It is very easy for me, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज पे बहुत सारा अपनी पूरी मीटिंग्स को साफ वन वे कम्युनिकेशन करता रहूँ।
बहुत आसान है। However, ये बहुत जरूरी है कि हम टू वे कम्युनिकेशन करें और स्टाफ से भी फीडबैक लें, या आपके जो रेसिपिएंट हैं उससे फीडबैक लें। अगर आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, या क्या गलत हो रहा है, या क्या सही हो रहा है, तो आपकी तरफ से ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन रहेगा। पुअर चॉइस ऑफ चैनल, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज वन वे कम्युनिकेशन करता जा रहा हूँ, और मीटिंग स्टाफ मीटिंग करके उनसे उनका फीडबैक ले नहीं रहा। बड़ी बड़ी कंपनीज साल में एक बार या साल में दो बार एजीएम्स करती हैं, जिसमें कि अपने सारे शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, वो अपने बारे में क्या कर रहे हैं उनको बताते हैं, और उनसे सीखते भी हैं कि उनसे हम क्या इनपुट दे सकते हैं। देयर इज अ न्यू चैनल, देयर इज अ न्यू, एक टर्म है जिसको यूज करते हैं, एक वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर फॉर एग्जांपल, ये मैंने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ही सीखा था। वॉइस ऑफ कस्टमर कहता है कि आई वांट सिक्योरिटी with my you know and I have a problem with spectacles, मुझे चश्मे से दिखाई नहीं देता। ये मेरा कस्टमर की आवाज है। हमने क्या किया, एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने ये आपका अंगूठा आपका पासवर्ड बना दिया कि आपको पासवर्ड, चश्मे के बिना भी आप, सिक्योरिटी के बिना भी आप काम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर। वैसे ही वॉइस ऑफ कंपनी क्या कहती है, वॉइस ऑफ कंपनी कहती है कि मुझे आई नीड प्रॉफिट। वॉइस ऑफ शेयर होल्डर्स क्या कहता है कि वी नीड बिगर पोर्शन। तो वैसे ही वॉइस ऑफ कस्टमर, वॉइस ऑफ क्या नाम है, शेयर होल्डर्स और वॉइस ऑफ स्टाफ अगर हम जानेंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन रखेंगे, तो इट विल बी गुड फॉर अस। So poor, so choice of channel and communication is something which is good, where it is not just one way, two way communication करना अच्छा रहता है। ओके, नाउ इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर कैसे होता है कि हम बहुत सारी चीजों में परसेप्शंस बना के रखते हैं। परसेप्शंस बना के रखते हैं कैसे, कि हम मान के चलते हैं कि कुछ चीजें कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। और कल फॉर एग्जांपल, कल केबीसी में कोई देख रहा था, किसी ने देखा होगा, तो वो बहुत ही पुअर पुअर फैमिली को बिलोंग करता था, एंड ही वांट अ वेरी हाई वैल्यू। मुझे एग्जैक्टली मैंने फिनिश नहीं देखा, तो आई थिंक वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। हम परसेप्शन मान के चलते हैं, बिकॉज ऑफ अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ स्टाफ, बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, बिकॉज ऑफ जो वो बोलता है, जिस जो चॉइस ऑफ उसका लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी चीजें बैरियर में बांध के हम अपने आप को रोक लेते हैं। So we have to know that this is a perception, or and we do not let us get carried away and keep things professional. Okay. Next is poor listening skills, कि हम listening, हमें सुनना, जैसे मैं बताया कि वॉइस ऑफ कस्टमर सुनना बहुत अच्छा है, कि लोगों को पता है एग्जैक्टली अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो कि किसी कस्टमर को नहीं चाहिए, तो मैं कितनी भी सस्ता क्यों ना हो या कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो नहीं बिकेगा। right? So you'll have to listen to people also, voice of company, voice of customer, voice of voice of the employee. Everything is equally important, and you have to be a good listener to understand. इसका ये एग्जाम्पल है, कि एक एग्जाम्पल भी लेमैन टर्म में है, कि why has God even given us 1 mouth and 2 ears, राइट? उसका मकसद ये है कि हम सुने जरूर। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, या सुनना जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं। सबके माँ बाप के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि पेरेंट्स बहुत कुछ बोलते हैं पर ये बच्चा सुनता नहीं है। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू से। तो वी हैव टू लर्न टू बी अ वेरी गुड लिसनर। तो ये गोल्डन रूल ध्यान रखिए कि यू हैव 2 ears and 1 mouth, because you are required to hear more and you are required to speak less. So speak appropriately when required. Okay. Next, कम्युनिकेशन बैरियर में एक लिमिटेशन है ईगोइज्म का। ईगोइज्म का आपको किसको कोलगेट का एग्जांपल पता है? कोलगेट का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कोलगेट कंपनी में कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, हर साल की मीटिंग्स में एक चीज डिसाइड होती है कि हाउ डू वॉइस ऑफ कंपनी कहती है कि हाउ डू यू गेट मोर प्रॉफिट्स, राइट? प्रॉफिट्स में सारे सीनियर मैनेजर्स और सब लोग मिलके बैठे हुए थे कि हम कैसे अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो कोलगेट चल ही रहा है, पेप्सोडेंट आ गया, बहुत सारे और लोकल ब्रांड्स आ गए, हमारा ये आयुर्वेदिक कौन सा है, रामदेव रामदेव भी आ गया है। बहुत सारे ब्रांड्स है विच आर ट्राइंग टू कम्पीट, एंड हाउ डू वी इंक्रीज सेल्स। तो उनका एग्जाम्पल आया और उनका सोल्यूशन आया कि जो कोलगेट का नोजल है, तो उस नोजल के छेद को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि कौन से मैनेजर ने, कौन से लेवल के स्टाफ ने उसका ये एग्जाम्पल दिया गया? इट वाज नॉट इवन अ मिडिल रैंकिंग ऑफिसर। ये आइडिया बहुत नीचे लेवल से आया था। तो अगर मैं ईगो में करता कि अरे ये तो कुछ भी नहीं बोल सकता,
कि अरे ये ट्यून क्या क्या आइडिया देगा। तो देयर इवन ऐसे लेवल के स्टाफ से भी एग्जाम्पल दिया गया जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इस्तेमाल किया गया। इवन टाटा का भी एग्जाम्पल है। टाटा होटल में एक प्रॉब्लम थी कि टाटा होटल्स में देयर वाज अ प्रॉब्लम कि देयर थी कि हर एक कस्टमर को चाय जो मिलती थी वो चाय बहुत लेट मिलती थी। एक नॉर्मल स्टाफ ने एग्जाम्पल दिया कि सर कॉफी को कैफे कॉफी जो कॉफी मशीन है वो आप डिस्क भी लगा दीजिए। So this idea came from very basics of very normal people. So you have to keep ego aside and be learning to be learn open to accepting ideas from anywhere. Okay? Next is emotions. You can set aside emotion barriers. Anyway. Next जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल बैरियर्स जैसे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में आपको ध्यान रखना होता है कि किस समय देर इज लैक ऑफ टाइम, देर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको अपनी सुपीरियर से किसी बड़े से बात करना हो तो कैसे बात करेंगे, कौन से टाइम पे बात करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्या होना चाहिए, उसमें आपको दिक्कत होती है तो यू यूज यू टेक योर कॉल, यू डू प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट, आप उसको चेक कीजिए, आपने प्लानिंग कीजिए, रिहर्स कीजिए किसी कॉलेज के साथ, किसी फ्रेंड के साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है, इसको रिहर्स कीजिएगा अपनी बात में तो हो सकता है वो आराम से करना आसान होगा। इफ रिक्वायर्ड डू एन ईमेल, इफ रिक्वायर्ड डू अ चैट, whatever is required or a message, so it is possible. So no worries sir, with subordinates ये आपके से अंदर, आपके अंडर में जितने जितने कॉलीग्स हैं या जितने स्टाफ हैं जो कि आप उनको उनसे ओपन रख के अपने आप को उनके आइडिया देना चाहें तो ले सकते हैं। दैट इज हेल्प यू। आइडियाज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एज आई सेड। एंड आपको उसको यू हैव टू बी अप्रोचेबल, आपको फियर नहीं होना चाहिए अपने सुपीरियर के साथ। यू वुड फियर हिम कि कि ही विल व्हाट विल ही से फॉर कि क्या डर है। आप उनको अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना के लिए एक्सेसिबल है। दैट विल बी हेल्पफुल। एनीवे, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स व्हिच इज यूजिंग ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में मैसेज कौन यूज करता है, और आज भी अगर कोई मैसेज करता है तो इवन दैट इज एक्सेप्टेड, बट there is a limitation to it. So the next is technical knowledge. As I said, Cisco Webex नहीं चल रहा था। It was a technical jargon जो कि technical कुछ glitch था जो कि हमें समझ में नहीं आया। So it was a barrier that we did not know how to use it. And there is noise and disturbance that can be done. And barriers and decoding कि आपको समझ नहीं ना आए कि हम exactly क्या करना है। Anyway, cultural barriers are adopting to the behavior of the group and religious beliefs. बहुत सारे एक एग्जांपल है कि when you want to uh, make business, when you want to do, when in during business uh, or during formal, be as when for any formal company, be as friendly as possible, या for any formal relationship be as friendly as possible। किसी भी फॉर्मल रिलेशनशिप में आप जितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं उतने अच्छे दोस्त बनिए, और किसी भी फ्रेंडली रिलेशनशिप में जितना फॉर्मल से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं उतना फॉर्मल से फॉर्मल कम्युनिकेशन रखिए। कि अगर आप दो दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हर चीज फॉर्मल रखिएगा, और दो अगर फॉर्मल लोग आपस में दोस्त कर रहे हैं तो उसको साथ मिलकर लोग कम्युनिकेशन करेंगे एंड दे बी एज फ्रेंडली एज यू पॉसिबली कैन। तो जस्ट टू रिमूव दीज बैरियर्स, इसका मकसद यही है कि हम बैरियर्स हटाएं। ओके, नाउ सो हाउ टू ओवरकम दीज कम्युनिकेशन, जो जो हमको प्रॉब्लम कभी दिखी है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक्स या टूल्स क्या हैं। टूल्स यही हैं कि हम फीडबैक जरूर लें कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं और वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और क्या कहाँ गलत जा रहा है। देन इम्प्रूव लिस्निंग स्किल्स, वो जो बोल रहे हैं, जो आपके क्लाइंट्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके जो रेसिपिएंट्स हैं, उनको जो आवाज है वो आप तक सुनाई दी जाए और आप उनको सुन पाएं और उनको समझ पाएं कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड अडैप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली फॉर अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स विच इज कि आप जो कम्युनिकेट करें तो पूरा संक्षिप्त में जितना ज्यादा सारा कम्युनिकेशन। एक और लर्निंग मेरे को बहुत ही सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे बताई थी, विच वॉज दैट यू लर्न यू राइट, जानकारी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, which means the more communication you give with concrete data and facts, the easier it becomes. Okay. Next is clarify ideas before communication. You should need to know what you're actually trying to communicate and exactly जो बोलना चाहते हो। कभी कभी पूरी 3-3 घंटे की मीटिंग हो जाती है और एजेंडा पॉइंट ऑफ जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है उसमें एक भी पॉइंट नहीं निकलता। तो इट इज एग्जैक्टली कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्रिस्प, कीप इट प्रिसाइज। जो आप बोलना चाहते हैं वो भी उसी पॉइंट पे बात करें और उसी पॉइंट में कम्युनिकेट करें। नाउ पुट कंसिडरेशन, सामने वाले की के टोज में उसके उसके इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू द कस्टमर शूज, स्टेपिंग इनटू द पीपल शूज, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड।
कि सामने वाले के नजरअंदाज से आप देखिए, सिर्फ अपना अपना मत बोलिए कि सामने वाले के नजरअंदाज से देखेंगे, वो ही वो तब अगर आप उनके नक्शे, उनके नजरिए से देख पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं, तभी आप अपना काम और उनका काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नाउ बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। कई कई चीजें हमारी भाषा में अच्छा होता माना जाएगा जो कि किसी और की भाषा में कल्चरल नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन कंपनीज आर वेरी वेरी अपफ्रंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज जापानीज, चाइनीज, साउथ ईस्ट एशियन, ये सब कंपनीज में यू आर रिक्वायर्ड टू सोशलाइज। आपको साथ मिलके खाना खाना होता है, आपको साथ मिलके यू ईट ब्रेड, इसको इसका एग्जांपल था, यू ईट ब्रेड विद कॉलीग, कि आप अपने अपने ऑफिस के कॉलीग के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे, कुछ खाएंगे, you share a meal with them, so you get to know their personal side also instead of just being formal. So once you have that kind of thing, it will help you build a better and deeper relationship. That is what our relationships are all about, business is all about. Okay. Now, so what we have learned right now is that effective communication is a two-way process of sending the right message to the right person, right? जिसको मैसेज कम्युनिकेट करना है उसको आप मैसेज पहुंचा पाते हैं, एंड वो रिसीवर रिसीव कर पाता है विद कंफर्मेशन एक्नॉलेज। सेकंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद टू बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। अगर उनको उस बात की सेंसिटिविटी नहीं है तो वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड is effectively communication includes the aspects of individual, auditory and specific language to appeal to the listener. Okay, so आपको you are delicate to the consumer behavior and consumer understanding. Next is effective communication is communication which produces intent and desired result. End में जो आपका requirement है वो करने के लिए जो भी communication करना जरूरी है वो आप कर सकते हैं. So it is required. Now, what makes a good communication? This is the last slide. Now, an active listener, right? You have to be an active listener. You have to be action, effective presenter. आपने आपने points को ढंग से communicate करना आना चाहिए through with proper channel, with proper expression, non-verbal communication. Third is a quick thinker. Instantly आप उस पे इंस्टेंट रिएक्शन आप देख सकें, आपको तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। और थर्ड इज अ विन विन नेगोशिएटिंग। ये चीज हम इसीलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ के का काम खत्म हो, दोनों दोनों तरफ का काम हो जाए, एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। वी विल डू दैट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वी लर्न listener to be a good listener, be a good presenter, and to think critically. I will use an example of a movie reference which I think I'm quite sure कि आप लोगों ने सब लोगों ने कम से कम 25 बार देखी हुई है, राइट? आई थिंक मिस्टर अर्पित, मैंने आपसे भी पूछा था तो आपने भी ये रेफरेंस यूज करते थे, बट वी विल यूज इट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग पर्सपेक्टिव कि इसमें से हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखेंगे। उस मूवी को आप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बार देखा है, बट इसमें से कम्युनिकेशन में क्या सीखेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। आई वांटेड टू लिसन टू दीज लैंग्वेज टू दीज फ्यू मिनट्स, एंड उसके बाद फिर मैं आपसे we will try and understand जो हमने सीखा था उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में। दिस इज वेयर व्हाट आई वाज बीन टॉकिंग अबाउट, वो आपको 2 मिनट में समझ में आप रिलेट कर पाएंगे। ओके, होल्ड ऑन। जाऊंगा फन जाऊंगा मर जाऊंगा वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
रहा हूँ। तुम लोग तो कहते हो कहाँ से रुक गया था? अरे वाह, अरे तुम कैसे हो? कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसा पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! या न दोस्त, इसलिए मैं चांद तय करूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालों, ना कोई प्रेमी जान देता है और भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गाँव वालों, when I said police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया just keep pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी। अरे गाँव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान से करूँगा। 1, 2, 3। मोदी, मोदी हाँ कर देना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ क्या मौसी? हाँ, वीरू, साचा, साचा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों? मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी, मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूँ चाचा? Okay. Now, I hope you were able to hear. I think Google में दिक्कत आ गई थी, so I hope you are able to hear. आपको ऑडियो आ रहा था? ओके ग्रेट, वेरी गुड। अब इसमें मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने इसको बहुत बार देखा है, पर इसमें सीखने, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या सीखने को मिला? ओके, इसके बारे में मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। आई जस्ट टेक 2 more minutes। ओके, नाउ इसमें आपको अगर ध्यान है तो इसके शॉर्ट के जस्ट पहले अमिताभ बच्चन भी गया था कन्विंस करने के लिए मौसी को। उसने सारे अच्छे अच्छे रेलेवेंट एग्जांपल्स दिए थे और जो करना चाहता था मौसी बिल्कुल मान गई थी कि बसंती का हाथ उसको नहीं देना है, विथ ऑल द नॉन रेलेवेंट एग्जांपल्स दिया था, राइट। अब इस केस में वीरू के पास, उसके पास रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसको बसंती चाहिए। उसने क्या यूज किया? he used what was very simple and what was available to him. He used the audience, वहां पे जितने ऑडियंस थे उसने सबसे पहले टू वे कम्युनिकेशन किया। टू वे कम्युनिकेशन मौसी के साथ तो उसको पता था कि नहीं होने वाला है, उसने टू वे कम्युनिकेशन किया गांव वालों के साथ। वहां पर उसने उसको रीजनिंग दी। क्या रीजनिंग दिया? कि अगर उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया और स्केयर टैक्टिक्स इस्तेमाल करी। ओके, स्केयर टैक्टिक्स वाज अगेन अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में कि वो लोगों को उनको डरे। और बॉडी लैंग्वेज उसने इस्तेमाल करी कि मैं मर जाऊंगा, मैं फिसलने लगा, ही स्लिप्ड अ लिटिल बिट आल्सो कि मैं फिसलूंगा और मैं आगे गिर जाऊंगा, नुकसान होगा, लोग डर गए। एंड उसने स्केयर टैक्टिक से क्या हुआ? ही यूज्ड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब उसने बोल के भी किया और साथ में उसने इनएक्ट भी किया कि, और साथ में उसने लोगों को रीजनिंग दिया कि बिकॉज ऑफ हिम बीइंग अनफेयर में ही इज अबाउट टू कमिट सुसाइड। ओके, साथ में उसका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत था
कि मैं सुसाइड, मैं चक्की पीसिंग, इतना ज्यादा उसका ड्रामेटिक हो गया कि द मौसी ऑल्सो गॉट कन्विंस कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसने कहा मौसी से शादी कौन करेगा, मैं तो बसंती से शादी करूंगा। यानी तो उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज, रीजनिंग और टू वे कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल करके स्केयर टैक्टिक्स यूज किए, और स्केयर टैक्टिक्स यूज करके ही गॉट व्हाट ही वांटेड टू अचीव, व्हिच वाज कि सब्जेक्ट जो है, मौसी जो है कन्विंस हो जाए और बसंती जो है कन्विंस हो जाए। इसमें सबसे जरूरी पैरामीटर क्या था जो हमने डिस्कस किया था, विच वाज लिसनिंग स्किल्स, कि ऑडियंस लिसन कर रहा था, सुनने को तैयार था, मौसी लिसन करने को तैयार नहीं थी। शी वाज नॉट अ लिसनर, व्हिच इज व्हाई ही एडेड द एंटायर गांव, पूरे गांव वालों को सबको उसने इस्तेमाल कर लिया। तो ही यूज द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज द सिचुएशन एंड ये स्क्रिप्टेड है माना, मगर हम इससे क्या सीख सकते हैं हम वो देखते हैं। ओके, सो स्क्रिप्टेड है मतलब कि ये लिखित में ये कहानी रख रखी गई है, मगर हम इसके बारे हम सिर्फ से क्या सीख सकते हैं वो उदाहरण हम देख रहे हैं। ओके, तो लिस्टिंग में मार्क्सी तैयार नहीं थी, गांव वाले सब तैयार थे, और उसने एज अ प्रेजेंटर ही यूज इमोशनल टैक्टिक्स, ही यूज वॉइस मॉड्यूलेशन, ही यूज रीजनिंग टू इमोशनली ब्लैकमेल मौसी एंड मौसी को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ओके, so that is how he was able to think and get his job done accordingly. This is the key learning. तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हुए हमने इसको यूज कर रहे हैं। नाउ हाँ, अभी few important points of communication, where this is last time that we need to have what we have learned is कि हम कुछ और एडिशनल चीजें हैं कि हम कम्युनिकेट करते समय जो हम करते हैं कि हम आई कांटेक्ट हमें होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट मतलब अगर मैं आपसे बात करते समय आई एम नॉट इवन स्पीकिंग टू यू, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू आई एम नॉट इवन लुकिंग एट यू, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा हुआ हूँ, तो इट इज कंसिडर्ड एज वेरी रूड। वेरी एक फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, एक वेलकमिंग नेचर होना चाहिए कि अगर आप एक इंडिया में और यहाँ पर कल्चर में बोला जाता है कि अगर कोई सीनियर आता है तो हम ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, राइट। ये बॉडी लैंग्वेज का पॉस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज है कि हम उसको मानते हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। देयर मल्टीपल थिंग्स दैट इज आल्सो बीइंग कम्युनिकेटेड, व्हिच इज जो कि आपको पता नहीं चलता, बट इट इज अनसेड बट इट इज बीइंग डन, व्हिच कैन बी डिटेल। बहुत लंबा सेशन हो सकता है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं ऑलरेडी ओवर टाइम मेरा शुरू हो चुका है, कंप्लीटली। बट नेक्स्ट इज बी क्लियर इन व्हाट यू हैव टू से, जितना बोलना है वो किस एक एक्रोनिम था, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा, संक्षिप्त रूप में जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो संक्षिप्त रूप में बोलिए। नेक्स्ट इज गिव कॉम्प्लीमेंट्स, लोगों को एक्नॉलेजमेंट कीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को जानिए कि क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे वापस, अगर सबका मैसेज आता है और आपको जवाब नहीं देता है, मोस्ट ऑफ यू आप कोई भी मैसेज आता है उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं करते हैं, तो उसको एक्नॉलेजमेंट करते हैं, साथ में उसको स्पेसिफिक बोल दीजिए थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, या उसको आई ग्रेटली अप्रिशिएट यू डूइंग दिस। So, so if you do that, it will just be a communication form, it will be a closure. जैसा मैंने बताया था कि फीडबैक बहुत जरूरी है, सेशन 7 स्टेप्स में 7 पॉइंट पर फीडबैक जरूरी है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप यूज करेंगे तो आपका 7th स्टेप में कम्युनिकेशन फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू गेट योर वर्क डन वेरी इजीली। नेक्स्ट इज एक्टिव लिस्टिंग, जिसका हमने उदाहरण भी देखा वीरू का कि उसने पूरे ग्रुप को इस्तेमाल किया और उसको स्केयर टैक्टिक यूज करके उसने अपना काम करवाया। ओके, तो एक गोल्डन रूल है जो जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको जिसको करके मुझे बहुत फर्क पड़ा था, विच इज मैल्कम गैडवेल करके है, विच इज द विच हैज अ 10,000 आवर रूल। इफ सम पीपल और इफ आपके में आपके इस ग्रुप में या कहीं पर भी, मेरी टीम में भी मेरे पास आई हैव नंबर ऑफ पीपल हु आर, जिनको बोला नहीं जाता, जो कि लड़खड़ाते हैं बोलते हुए, जो कि बात नहीं कर पाते, जो कि जिनको समझ में नहीं आता किस समय किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। So there is a golden rule which is helped in which I would like you to learn, which is the 10,000 hour rule. The principle states कि deliberate practice करने से are needed to become the world class to 10,000 hours of deliberate practice are needed to become the world class in any field. मतलब आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र सहवाग ने 10,000 बार प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो 10,000 में प्रैक्टिस करा तभी वो जाके वर्ल्ड चैंपियन बन पाया, राइट। एनी अदर सानिया ने 10,000 आवर्स और स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस किया तो वो इस लेवल पे आ पाए कि वो आज इंडिया के लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। सो यू नीड प्रैक्टिस, दैट इज ऑल यू नीड। पहला कदम, आप मानेंगे, पहला एक्सपीरियंस वाज इन टेलीकॉम
एंड मैं काउंटर पे आई स्टार्टेड एज अ पार्ट टाइम जॉब इन वोडाफोन एंड मेरा पहले जॉब में आई एज आई टोल्ड यू आई वाज एन इनएक्सपीरियंस स्टाफ एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक। मेरा पहला असाइनमेंट में मुझे बोला गया था कि यू स्पीक वन लाइन टू एटलीस्ट 200 कस्टमर्स इन अ डे। मैं गेट पे काउंटर पे टोकन पे खड़ा रहता था और टोकन पे देता था, एक ही लाइन बोलता था, इट वाज नमस्कार, इंतजार करने के लिए शुक्रिया, प्लीज बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। साथ में उसके बाद टोकन नंबर निकाल के इनका आपका टोकन कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जिस काउंटर पे दिया जाएगा उस काउंटर पे चले जाइए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आई सेड इट 300 टाइम्स और एटलीस्ट 200 टाइम्स इन अ डे एंड विद इन 2 वीक्स मुझे आज तक याद है इतना घुट चुका हूँ। तो द फर्स्ट टाइम ऑफ डूइंग एनीथिंग, आप सब अगर कम्युनिकेशन गैप आता है, कीप ट्राइंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हार्ड। आप एक ब्रिगेडियर थे, एक ब्रिगेडियर से गलती से मैंने पूछा था कि सर हाउ कैन आई हेल्प यू, दैट ब्रिगेडियर इंस्टेंटली रिप्लाइड बैक कि यू कैन हेल्प मी, यू नो हु आई एम, द इंडियन आर्मी हैज गिवन मी crores rupees worth of equipment, I have 1000 jawans under me and you will help me. I am sorry sir, I how can I assist you? तो कीवर्ड्स ये सब गलती सीखने से ही आएंगी एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग। 10,000 किसी भी चीज को 10,000 बार करेंगे, यू बिकम द बेस्ट एट इट एंड फर्स्ट टाइम यू विल डू इट, यू विल मेक मिस्टेक्स, देयर इज नो डाउट। 10th time you will do it, it will be comparatively easier. 100th time it will be a piece of cake. 1000th time you will be the world champion. ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। अगर आपको हेजिटेशन होता है कम्युनिकेशन में, अपने बैरियर समझिए, देयर इज नो गोल्डन रूल टू इट एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करें, जितना ज्यादा बेहतर है। बी आउटस्पोकन इन, जो बोल पाता है वो भी अपना काम निकलवा पाता है और उसी चीज के उनको पैसा मिलता है। विच आर द लीडर, लीडर्स आर ओनली पीपल हु आर एबल टू कम्युनिकेट। मेरे दो लीडर्स में सबके अपने अपने एग्जांपल्स हैं, मेरे पास भी एग्जांपल्स हैं। इलॉन मस्क इज वन ऑफ देम, स्टीव जॉब्स इज वन ऑफ देम, शशि थरूर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो अपना क्या क्या बोलता है उसको 15 मिनट लगते हैं मुझे समझने में वो क्या क्या बोल रहे हैं। बट एनीवे, so it takes to get to his level I need to work. It's been 10 years with me but it takes time, so no issue. So I wish you all the best, no worries. And Arpit ji, if you are here I would just like to Yes, sir. hand Yes, over sir. the, I'm here. I think I took longer than expected. No, so the session was actually wonderful. So actually, no one bothers about time basically for such kind of sessions. Wonderful. So no issues. I hand over the mic again to you. So my session is over. I don't have anything. I can go on, but it's a little more lengthy otherwise. So I have, this is the plan for today. Yeah. I would actually like to quote something because you have taken a yes, please. You have taken a wonderful session. So what like we actually learned so many things from this session, but the main thing is that rewinding the scenes of Jai, Veeru and Basanti, even Mosi ji, refreshes the memories of our childhood. It was one of the finest movies of India cinema, like of Indian cinema. And the main thing is that you just represent the same in a different way, like with a correlation of communication, and that is, I think, the perfect example of education with entertainment. Because the major thing which we are facing at present is confidence, because students are not having that much confidence, so that they are not able to communicate. And communication actually creates confidence, and confidence will definitely boost their communication. No doubt. Again, So, the current slide is perfect for them. 10,000 hour rule. They can start, they can hesitate the first time, but I would want them to keep practicing. If they do 10,000 times, they will be the best. That's what my yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, finally, thank you, Mr. Anshu Jha, for giving understanding of communication and its factors in details. Thank you again on behalf of students, on behalf of GLS family, for giving your valuable time. Thank you. We would like to see you again, sir, in future. Of course. Very soon. Very soon. But it will be my pleasure. They is always available for any kind of question, and we will be happy to be available.